ناظرین، میں ہوں فرزانہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں 19 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بہت سارے ایسی خواتین سے آپ کو ملوائیں گے جو کہ آنے والے الیکشن کا حصہ بن رہی ہیں، اور وہ خواتین بھی جو بدقسمتی سے چاہتے ہوئے بھی حصہ نہیں بن سکی۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 3000 سے زائد خواتین 17 اضلاع میں 19 دسمبر کو ہونے والے الیکشن میں مختلف نشستوں پر حصہ لے رہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو معاشرہ ہے وہ ایک ٹرائبل معاشرہ ہے، پدر سری سوچ رکھنے والا میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے، جہاں پہ خواتین کو عموماً ایسے معاملات سے دور رکھا جاتا ہے جہاں پہ گھر سے باہر نکل کر کچھ کرنا ہو۔ اور ظاہر ہے جب آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سیاست میں حصہ لینے کے لیے اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنا پڑتا ہے، آپ کی آواز کو لوگوں تک پہنچانا پڑتا ہے، بلکہ آپ کو دوسروں کی آواز بننا پڑتا ہے۔ لیکن اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ایک خواتین کی اس سیاسی عمل میں شمولیت کتنا مشکل ہے، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہم آپ کو دکھائیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو کئی ایسی خواتین سے ملوائیں گے جو کہ اس پروسیس کا یعنی کہ سیاسی عمل کا، بلدیاتی الیکشن کا حصہ بننا چاہتی تھی لیکن انہیں روک دیا گیا۔ پھر آپ کو کچھ ایسی خواتین سے بھی ملوائیں گے جن کو بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا چانس تو ملا لیکن ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے کر دیا گیا کہ جس سے اس کے ووٹرز کم ہو گئے، یعنی کہ ان کا بلاک بدل دیا گیا۔ پھر کچھ ایسی خواتین سے بھی آپ کو ملوائیں گے جو کہ مضبوطی کے ساتھ ہر عمل میں اور ہر مشکل سے گزرنے کو تیار ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ مختلف الیکشن کا یعنی کہ بلدیاتی الیکشن کا حصہ بن چکی ہے، اور ایک بار پھر اگرچہ اس وقت وہ جیت نہیں سکی لیکن اس بار وہ جیت کی امید کے ساتھ ایک بار پھر میدان میں ہے۔ تو مختلف چہرے، مختلف کردار، لیکن خاتون جو ایک انسان ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ سیاسی عمل میں شمولیت میں حصہ لے سکے، لیکن مشکلیں کتنی ہیں یہ آپ کو دکھائیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں 19 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن کی، اور اگر ہم فوکس کریں خواتین پر تو خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے حوالے سے 3000 سے زائد امیدوار 17 اضلاع میں اس وقت الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں، اور 19 دسمبر کو یقیناً ان کے ناموں پر جب ٹھپے لگیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین جو ہے وہ کونسلز کا حصہ بنے گی۔ بہرحال ہری پور میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں اور ہری پور کی کچھ نمائندہ خواتین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، تو روبینہ سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں۔ روبینہ، کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے اس کو فیس کیا، اور اب الیکشن ہونے والا ہے؟ خواتین کو چونکہ مردوں کا معاشرہ ہے تو اس وقت تک کوئی بھی ترقی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ عورتوں کی جو 52% آبادی ہے اس کو آپ سیاسی شعور نہیں دیں گے، اس کو سیاسی ترقی کے لیے آگے نہیں لے کے جائیں گے، تو اس میں خواتین جو ہے کسی طریقے سے بھی اپنا پازیٹیو اور مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتی۔ مشکلات کیا ہوئی؟ مشکلات بہت سی ہوتی ہیں، کاغذات وغیرہ جمع کروانے سے لے کے اب تک بہت سی مشکلات ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی جو خواتین ہوتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اپنے خاندان پہ، اپنے سربراہوں پہ کہ وہ ان کو معاشی طور پہ فائنینس کرتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ خواتین کو فائنینشلی طور پہ وہ مضبوط نہیں ہوتی، اور الیکشن میں حصہ لینے کے لیے آپ کے پاس پیسوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے جی کہ ابھی جو ہماری الیکشن کمیشن کی طرف سے جو لسٹیں ہیں، جو ناموں کی رجسٹریشن وغیرہ ہے اور علاقے میں ووٹر کا نہ ہونا، یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ معاملات خراب کر رہے ہیں۔ کاغذات ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں خواتین کے بھی اور میل کے بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں بہت سی جو حلقہ بندیوں میں یہ مسائل آئے، حلقہ بندیوں میں ہو رہی ہیں، جہاں پہ لوگوں کا حلقہ ہے وہاں پہ اس میں ان کی ووٹ نہیں لکھی ہوئی ہے، کسی اور جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ کاغذات اپنی جگہ پہ جمع کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں الیکشن کے دنوں میں خواتین کو زیادہ جو ہے نا وہ پیچھے رکھنے کے لیے مرد جو ہے وہ زیادہ آگے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ دڑ جنبوں سے ہٹ کے آئے اور ہمارا ساتھ دیں اور اپنی خواتین کو کمزور کرنے
करने के लिए बहुत से प्रोपेगेंडा जो होता है वो ज्यादा काम कर रहा होता है। इसके अलावा बरादरी के जो खानदानों की जो मुखालफतें होती हैं वो भी बल्दियाती इलेक्शन में सामने आ ये बरादरी की मुखालफतें, ये खानदानों की मुखालफतें मर्दों के लिए क्यों नहीं होती? हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि औरत कमजोर होती है, इसको इसलिए उसको बेचारी को बहुत सी मुश्किलात होती है। खानदानी जो बरादरी की मुखालफतें होती है उसका भी सामना करना पड़ता है, और लोगों की जो होती है वो भी सामना करना पड़ता है। मर्द चूंकि ताकतवर है, मर्द चूंकि ज्यादा सियासी शऊर रखता है, सियासी हक रखता है, और वो लोग जो होते हैं ना इस पे एतमाद करने में थोड़ा सा औरतों को पीछे रखा जाता है। तो मेरी अपनी तमाम बहनों से, तमाम खवातीन से ये अपील है कि अपनी खातून को, अपनी आने वाली जो आपके इलाके में खड़ी हो रही है उसको मजबूत करे, और पिंक जो उसका वोट का बैलेट पेपर का कलर है उसको कामयाब करे, ताकि वो आपके हकूक के लिए, आपके राइट के लिए आवाज बुलंद करे, और आपकी जो सियासी तरक्की है उसमें वो अहम किरदार अदा कर सके। रुबीना की बातें आपने सुनी, और वो कह रहे हैं कि पिंक जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर आके जरूर वोट दे। पिंक बैलेट पेपर आपको बता दूं कि खवातीन के लिए है। रुबीना ने कहा कि मर्दों के लिए मसाइल नहीं है, औरतों के लिए बहुत ज्यादा है। मर्दों के लिए सब मैदान खुला है, आपके लिए फिक्स कर दिया गया है। कितनी हद तक आप इससे एग्री करती हैं? देखें जी, बिल्कुल ये ठीक बात है। कुछ परसेंट मैं उसको थोड़ा सा कम करूंगी कि इस बात में 90% सच्चाई है, 10% नहीं मैं मानती, क्योंकि अगर हमारे मर्द ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम इस मुकाम तक आए हैं। तो मैं समझती हूँ ये कुछ ऐसा माशरा है, कुछ मर्द मतलब ये चाहते हैं कि खवातीन को ज्यादा से ज्यादा पीछे करें ना। तो सारे मर्द नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह के हैं, लेकिन हमने डट के मुकाबला करना है बहना। हमने उनको साबित करके दिखाना है कि हम में भी ताकत है, हम भी अच्छे फलाई काम कर सकते हैं, हम भी अपने इलाके की बेहतरी चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें डट के मुकाबला करना चाहिए। जब हमारी बातों में, हमारे मंशूर में अच्छी बातें होंगी तो एक न एक दिन यही हमारे माशरे के मर्द हमारी बातों को मानेंगे। लुबना हमारे साथ मौजूद है, पेशावर से है। जनरल काउंसलर के लिए कर रही हूँ, और 14 मेल हैं उसमें, और एक सिर्फ फीमेल मैं हूँ, और ये बहुत टफ मुकाबला है जी हमारा। औरतों का मुकाबला हमेशा टफ ही होता है, लेकिन हिम्मत पकड़नी है आपको। अच्छा, ये ओपन इस तरह से इलेक्शन नॉर्मली जरा मुश्किल हो जाता है, तो कितनी मुश्किलात हुई आपको? मुश्किलात तो बहुत होती हैं, आपको पता है। काफी लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं, कॉल्स भी करते हैं, मेरे पीछे भी आते हैं, मैडम आप प्लीज बैठ जाए ना, इलेक्शन में आए। तो लेकिन मैंने यही कहा, मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी है हमने, तो हमने मुकाबला करना है। देखिए, कोई काम मुश्किल नहीं होता, हम समझते हैं मुश्किल है, लेकिन अगर हम करने वाले हों, कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए काम मुश्किल नहीं हो सकता। ठीक है, हिम्मत पकड़नी है, हिम्मत पकड़नी है, और हिम्मत कभी नहीं हारनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम निगार रऊफ है, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के एक यूनियन कौंसिल ज़ियारत काका साहब से मेरा ताल्लुक है, और इस टाइम मैं खवातीन की सीट पर इलेक्शन लड़ रही हूँ। क्या मुश्किलात हुई? मुश्किलात कुछ ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले ये मेरी खुशकिस्मती है, इससे पहले मैं 3 दफा इलेक्शन लड़ चुकी हूँ, 2 दफा यूसी लेवल पर, 1 दफा तहसील की, और वो मैं जीत चुकी हूँ। लेकिन मुश्किलात की अगर मैं बात करूँ तो 2018 में मुझे मुश्किलात हुई थी। एक सीट खाली हुई थी जो मेल की सीट थी, जिस पर मैंने इलेक्शन लड़ा था डिस्ट्रिक्ट के लिए, और सिर्फ इस वजह से मैं खातून हूँ, मुझे वहाँ पर वोट नहीं मिले और मैं हार गई थी वो सीट। इस बार मैं इंशाल्लाह जीत जाऊंगी, क्योंकि मैं खातून की सीट पर खड़ी हूँ। रिजर्व सीट पर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि मुख्तलिफ खवातीन की जो बातें हैं, उनके मसाइल हैं, उनकी आवाजें हैं, हमने आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाई। ये एक झलक थी कि 19 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन में जो खवातीन नुमाइंदा आ रही हैं हमारे सामने, वो किस किस्म के पुलिस राज से गुजर कर, वो कांटों की या आप कहें कि उन कांटों से गुजर कर वो आप तक आ रही हैं, आपकी लीडर्स बन रही हैं, और इस सिलसिले में उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये हमने प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको दिखाया। अगले हिस्से में आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसी खवातीन से जिन्हें इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। क्यों और कैसे जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की,
اور ہم آپ کو مختلف کرداروں سے اس پروگرام میں ملوائیں گے کہ وہ خواتین جو کہ الیکشن کا حصہ بننا چاہتی تھی، بن رہی ہے یا کسی وجہ سے بن نہیں پائی۔ اچھا، یہ جو ایک مسئلہ مسلسل آ رہا ہے کاغذات نامزدگی سے لے کر آج تک، اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین جو کہ اس الیکشن کا حصہ بننا چاہتی تھی، کیونکہ بار بار کوشش کی جا رہی ہے سول سوسائٹی کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، اور مختلف فورمز پر بتایا جا رہا ہے کہ خواتین کو سیاست میں ان کی شمولیت کو ممکن بنایا جائے۔ خواتین اس پروسیس میں آنا چاہتی ہیں، وہ اپنی خواتین بہنوں کی آواز بننا چاہتی ہیں، لیکن معاشرہ آج 21ویں صدی میں بھی ان کو یہ اجازت دینے کو تیار نہیں۔ کیسے، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے آج۔ عائشہ رحمان سے آپ کو ملوائیں گے، ایک ایسا کردار جو خواتین کی آواز بن کر ان کے مسائل حل کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا۔ عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ عائشہ، آپ بلدیاتی الیکشن کا حصہ بننا چاہتی تھی، کس نشست پر آپ کھڑا ہونا چاہتی تھی اور آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ میری مدر نے کہا کہ وی وانٹ چینج، تو دیٹس وائی یو ہیو ٹو ٹیک اسٹیپ۔ تو میں نے اسٹیپ اٹھانا چاہا، میں نے چاہا کہ میں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کروں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ میں الیکشن کمیشن آفس جو ہے وہاں پہ گئی کہ ڈاکومنٹس میں لوں۔ وہاں پر جب میں کاغذات نامزدگی کے لیے گئی تو وہاں پر مجھے ایشوز یہ آئے کہ انہوں نے ایک باہر چارٹ لگا کے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ آپ جو ہے فلاں جگہ سے جا کر اپنے ڈاکومنٹ، میں نے انہیں کہا کہ بھئی میں یہاں شامی روڈ میں رہتی ہوں، یہ الیکشن کمیشن کا آفس ہے، میرے قریب پڑتا ہے، اس لیے میں یہاں پر ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے آسانی ہے۔ تو آپ لوگ مجھے کہاں بھیج رہے ہیں، یہاں وہاں جائے اور اتنا ٹریولنگ، اور میں اکیلی فیمیل جو ہوں یہاں پر دھکے کھاؤں گی، جگہ جگہ ٹریول کروں گی، مطلب آپ کو پتا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کا ایکسپینس آتا ہے، آپ ایک جگہ سے ٹریول کرتے ہو۔ پھر آگے میں نے ریکویسٹ کی کافی، پھر آفیسر سے میں ملی تو وہاں پر انہوں نے میری اتنی ہیلپ کرتی کہ وہاں سے مجھے ڈاکومنٹس مل گئے۔ بات وہاں پر میرا دل اس چیز پہ کافی دکھا کہ مطلب وہاں پہ ایک چیز آپ کو اس لیے ایکسیسیبل تھی لیکن مجھے پہلے نہیں ملی گئی۔ جب میں نے تھوڑی سی آواز اٹھائی، ان کو پتا لگا کہ یہ ایجوکیٹڈ ہے اور اس کو سمجھ ہے، تو انہوں نے مجھے ڈاکومنٹس دے دیے۔ اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا، میں نے وہاں پر خواتین کی نشست پر آئی، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ یوتھ پہ جو ہے اگر آپ آؤ گی تو یوتھ پہ ہمارے پاس کمپٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ فیمیلز بھی آج کل جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کافی پیچھے ہیں اور کوئی نہ مسئلوں کا پتا ہوتا ہے نہ کوئی وہ بات کر سکتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایز اے فیمیل میں آ کر اس خواتین کی نشست پر جو ہے الیکشن کروں اور یہاں پر مطلب میں فیمیلز کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو میں نے جو فیمیل سیٹ ہے اس کے لیے اپلائی کر لیا۔ جب میرے ڈاکومنٹ سب آزاد حیثیت سے اپلائی کیا تھا؟ میں جو ہے وہاں پر الیکشن کمیشن کے آفس میں ہی ایک بندے نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ میں آپ کو ایک پینل میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ تو پینل میں ایڈ کرنے کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اس سے آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ہوگا کہ آپ کے ایک پینل بھی بن جائے گا اور آپ اسٹرانگ بھی ہو جاؤ گی۔ تو میں نے ان کی بات مان لی اور میں ایک پینل میں اسی ٹائم میں نے پینل سے اپلائی کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب سارا کچھ ہو گیا، آپ کو پتا ہے اس کے بعد لسٹ آتی ہے، اور لسٹ میں جب میرا نام آیا تو لسٹ میں نام آنے کی وجہ سے میرا ایک بھائی ہے جس نے کافی ایکشن لیا اور وہ گھر آ کر اس نے جو ہے کافی سین کریٹ کیا، تماشا بنایا، مطلب میری مدر اور فادر کے اوپر شاؤٹ بھی کیا کہ بھئی جی آپ نے اس کو پرمیشن کیوں دی۔ تو میرے فادر جہاں پر بہت کوآپریٹو ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے۔ میری مدر نے کہا کہ ایجوکیٹڈ لڑکی ہے، باہر یہ پڑھنے کے لیے گئی ہے، پاکستان کے اندر یہ جاب کرتی ہے، یہ ٹریول کرتی ہے، تب تو مطلب اس طرح کوئی بات نہیں ہے، تو یہ کیوں نہیں لڑ سکتی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں ہماری عزت خراب ہوگی، لڑکوں کو پتہ لگ گیا اور سارے فرینڈز اس کو کہہ رہے تھے کہ تمہاری بہن پارٹیسپیٹ کری ہے، تمہاری بہن کھڑی ہے۔ تو وہ بہن کا نام جو ہے نا اس کے اوپر زہر لگ رہا تھا کہ مطلب بنیادی طور پر مسئلہ آپ کے بھائی کا نہیں، لیکن سوسائٹی میں وہ جو دوسرے مرد تھے وہ اس کو وہ غیرت دلانا اور وہ سارے وہ جو مسائل ہیں جس کا عام طور پر ہمیں سامنا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ابھی اس کو غیرت اس چیز پہ آ رہی تھی کہ میری بہن کا نام جو ہے وہ آئے گا کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ، بینرز چھپے میں، بینرز پہ آئیں گے، یا اس کا نام جو ہے وہ آئے گا کہ بینر کے اوپر کہ بھئی جی عائشہ رحمان، یا پھر اس کی پکچر یا وٹ ایور جو بھی ایشوز اس نے بنائے، اس نے کہا کہ لوگوں کو یہ پتا لگے کہ یہ الیکشن میں آئی کیوں ہے۔ اس نے مدر سے کہا آپ کرتی لیکن یہ نہیں، اس نے کہا جب میں کر سکتی ہوں تو یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ تو انہوں نے اس نے کہا بس نہیں، یہ لڑکی یہ نہیں کرے گی، اور اس نے پھر وہیں پہ مجھے سٹاپ کیا۔ اس نے دھمکی دی گھر میں کہ بھئی جی اگر آپ اس کو پارٹیسپیٹ کرنے دو گے تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا۔
फिर जहाँ पर उसके बाद मैंने मदर से कहा कि नहीं मैं तो पीछे नहीं हटूंगी। उसके बाद ये हुआ कि मेरी सिस्टर की शादी होने वाली थी, तो इस वजह से घर के माहौल के ऊपर कोई असर ना आए, तो मेरे फादर और मेरे मदर ने दोनों ने बैठकर मुझे समझाया और मुझे कहा कि प्लीज हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे पार्टिसिपेट, लेकिन अभी इस बार जो है ये ना हो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो आप प्लीज चुप हो जाओ। बस ये बात, मैं ना तो इलेक्शन ऑफिस से गया, मैं कहीं पे भी दोबारा नहीं गई, ना ही मैंने वहां से डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन मेरा नाम ऑटोमेटिकली लिस्ट से रिमूव हो गया और ऐसे मैं इस बार नहीं कर रही हूँ। नहीं कर सकी। देखिए ये आयशा रहमान जो है वो इतनी बहादुर लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, इस कौम ने एक किस्म का एक लीडर जो है वो यूथ लीडर जो है, एक नौजवान लीडर मिस कर दी कि आपका भाई, आपकी कम्युनिटी, मुख्तलिफ मसाइल में उलझे हुए लोग, फिर पेरेंट्स पर प्रेशर। अब अगर हम यूथ के ये रिप्रेजेंटेटिव सामने नहीं आने देंगे तो फिर हमारा माशरा कैसे चेंज होगा, फिर सोच कैसे बदलेगी। मेन इशू जो है वही हम बार बार कहते हैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ चीजों में आपको दिखाते हैं कि किस तरह खवातीन को रोका जाता है, हर्डल्स बनाई जाती हैं, और वो जो माइंड सेट है वो बदल नहीं रहा। 21वीं सदी में भी माइंड सेट नहीं बदल रहा, और पढ़े लिखे लोग भी, आयशा रहमान जैसे लोग भी, अगर हिम्मत तो उसने नहीं आ रही लेकिन मजबूरी में पीछे हट जाएंगे तो फिर क्या होगा। ये एक छोटी सी झलक थी इस माशरे की जो आपको दिखाना मैं चाहती थी। हम और भी किरदारों से आपको मिलवाएंगे कि इस बल्दियाती इलेक्शन के दौरान नॉमिनेशन पेपर से लेकर हल्का बंदियों से लेकर और अब तक की क्या सूरत हाल का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और पड़ा। हमारे साथ रहिएगा। अब हमारे साथ नौशेरा की रुखसार मौजूद है। इन्होंने भी बताया कि इनके साथ भी सेम यही मसला हुआ। क्या हुआ रुखसार के साथ, जरा ये जानते हैं। रुखसार, आप थोड़ा सा अपना तारफ कराइए कि पढ़ी लिखी हैं, किस बुनियादी तौर पर किस इलाके से नौशेरा के ताल्लुक रखती हैं और क्या हुआ आपके साथ? जी, मेरा नाम रुखसार दुरानी है, मैं नौशेरा से बिलोंग करती हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो BA है। और मैंने जो है तो यूथ सीट के लिए जो है तो अप्लाई किया था, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा हर्डल पेश आई, जिसकी वजह से फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, क्योंकि मेरे अंकल का बेटा जो है तो वो भी जो है तो यूथ के लिए वो भी खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो है तो यानी इलेक्शन नहीं लड़ना। तो इस वजह से मैंने, मतलब खानदान का लड़का इलेक्शन लड़ेगा लेकिन आप नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, आप नहीं लड़ेगी। तो इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा हर्डल पेश आई, जिसकी वजह से मैंने जो है तो अपनी फाइल वापस ले ली, क्योंकि फैमिली वालों ने मेरे अबू को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया कि ये लड़की है और ये जो है तो ये इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो इसी वजह से जो है तो यानी मैं इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आई, जिसकी वजह से जो है तो मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकी। रुखसार की आपने बातें सुनी कि खानदान का जो मर्द है, नौजवान है, वो इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन आप लड़की हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ेगी। और यही एक देखिए, अब मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आपके सामने आ रहे हैं कि किस तरह एक भाई कहता है तुम्हारा पोस्टर पर चेहरा आएगा, नाम आएगा, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। यहाँ पर जब मर्द और औरत का मुकाबला आता है तो जैसे कि हम घर में भी देखते हैं कि अच्छा खाना भाई को मिलता है और बचा हुआ खाना जो है वो बहन को दिया जाता है। बिल्कुल वैसी सिचुएशन जो है वो हमें रुखसार के साथ भी नजर आ रही है कि घर का चूंकि नौजवान लड़का वो इलेक्शन लड़ेगा यूथ की सीट पर, तो इसलिए आप नहीं लड़ सकती। तो ये वो माशरे की तजादात हैं जो आज इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी के हवाले से, और पता नहीं दुनिया चांद पर पहुंची हुई है और खलाओं को तस्खीर किया जा रहा है, लेकिन नौशेरा और पिशावर की खवातीन, पिशावर और नौशेरा और खैबर पख्तूनख्वा की बच्चियों को किस किस्म के मुश्किलात का सामना है, ये आप देख रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती। तो अब आप अंदाजा करें कि जो इलेक्शन होने वाला है उसमें इतने अहम लीडर्स हमसे रह गए हैं, तो देखेंगे कि इलेक्शन कैसे होता है। बहरहाल हमारा प्रोग्राम अभी जारी है, हमारे साथ रहिए।
साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है कशमाला मुंतजिर जो कि नौशेरा कलां से ताल्लुक रखती है। इनके साथ क्या हुआ ये आपको बताएंगे इन्हीं की ज़बानी। कशमाला, पहले थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइएगा, आप कहाँ से हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं और क्यों इलेक्शन लड़ना चाहती थी, तो ये भी एक थोड़ा सा लोगों के सामने आ जाए। बिल्कुल, मैं बेसिकली तो लाहौर की रहायशी हूँ, मगर मेरी शादी यहाँ हुई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, लाहौर से पढ़ी लिखी हूँ ना, मगर मैं जब यहाँ आई मैंने देखा इलाके में नाखवानदगी बहुत है। इलाके में सादा और मासूम औरतें हैं, इन्हें किसी चीज का पता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मुझे इलेक्शन का मशवरा दिया कि भाई आप ऐसा करो ना, पॉलिटिक्स में आ जाओ, आपको बोलने का भी हुनर है और आप कुछ कर भी सकती हो। तो मुझे हस्बैंड ने तो काफी प्रमोट भी किया, सपोर्ट भी किया और खानदान के मतलब मशरान ने भी मुझे सपोर्ट किया। मगर जब मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और इस दफा ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का वोट भी मेरे साथ नहीं था। इलाके के कुछ ऐसे बड़े ताकतवर लोगों ने मेरे पूरे ब्लॉक का वोट जो था वो चेंज कर दिया। तो ऐसा हुआ कि मैं जब कागजात नामजदगी जमा करवाने गई हूँ तो मैंने पहले कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जब मुझे पता चला तजवीज गुंदान और दूसरे लोग भी सब मेरे साथ नहीं है तो मुझे बहुत टेंशन हुई। मैं फिर दोबारा बार बार मेरे हस्बैंड चक्कर लगाते रहे, कभी इधर कभी उधर। फिर दोबारा हमने दोबारा से कागजात लिए, दोबारा हमने इलाके में ढूंढा भी कि कोई मेरे साथ मिले। यानी ये एक बकायदा साजिश थी कि भाई ये औरत दोबारा खड़ी ना हो, क्योंकि मैं पहले भी एक दफा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और मैंने अपने तकरीबन समझ लें अपनी जुबान और अपनी अखलाक से मैंने इलाके में वोट लिया। लोग मुझे कहते हैं तुम्हें यहाँ कोई जानता ही नहीं, तुम्हें कोई यहाँ वोट ही नहीं देगा। तो मैंने कहा कि मैंने सोशल वेलफेयर के तौर पे काम किया है तो इंशाल्लाह ताला मैं जरूर जीतूंगी। और अभी मेरे साथ ये मसाइल बहुत ज्यादा आया क्योंकि मुझे टोटली ब्लॉक मेरा चेंज कर दिया गया। एक ब्लॉक में मेरी जान पहचान ही नहीं है, उस ब्लॉक में जाके मैं डोर टू डोर बकायदा कह रही हूँ और मेरी एक किस्म की मुझे पश्तो भी नहीं आती। मगर ये कि इन लोगों के एक मिनट कशमाला, एक ही खानदान के लोगों के एक ही घर के लोगों के वोट एक का एक ब्लॉक में दूसरे का दूसरे ब्लॉक में, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा था? इलेक्शन कमीशन के भी हमने बहुत चक्कर लगाए। वो कहते अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप जी जब इलेक्शन हो जाएंगे तब आइएगा। मेरे हस्बैंड का वोट मेरे साथ नहीं है, मेरे कजन मतलब बरादरी का वोट मेरे साथ नहीं है, तो कितनी बड़ी मुश्किल अगर आप सोचे तो, क्योंकि मुझे कौन वोट देगा। मगर ये कि मेरा इखलाक और मैंने औरतों के मुतालिक, औरतें काफी अनपढ़ हैं और औरतों को अवेयरनेस नहीं है। जज्बा प्रोजेक्ट में जब शामिल हुई हूँ तो इन्होंने मुझे कहा कि आपको हम थोड़ा सा यानी कि मोटिवेट करेंगे, आप में जज्बा है बोलने का, आप में जज्बा है बात करने का, आप औरतों डोर टू डोर जाएं, लोगों के साथ बात करें, ताकि मैं औरतें बहुत मायूस हैं वोट के सिलसिले में भी। क्यों आदमी हजरात कहते हैं कि जी किताब को वोट डालो, अब उन्हें ये पता नहीं किताब क्या है। औरत कहती है मैं बैठ कर वोट डालना चाहती। आदमी का प्रेशर किताब पर है, बरादरी सिस्टम, ग्रोह बंदी, गलियों के एक वो दोस्ती का जो लेवल है, आप मेरे दोस्त को वोट डालेंगे, यानी कह रहे कुछ लोग पैसों से वोट खरीद रहे हैं कि भाई हम आपको इतने पैसे देंगे। ये कि खवातीन कितनी मजबूर होती हैं अपने घर के मर्द के सामने वोट डालने के हवाले से। औरतों को शौक है वोट डालने का, मगर आदमी हजरात इजाजत नहीं देते। औरतों को ये नहीं पता, औरतों का दिल है कि मैं फलां को वोट दूं, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है या मेरे लिए बहुत अच्छी है, मगर आदमी कहते नहीं 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 वो बेबाक है, वो गलियों में फिरती है, उसको पर्दा नहीं है, तो वो अच्छी औरत नहीं है। तो मतलब कहने का ये आदमी खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं कि जी वो अच्छी नहीं है। औरतें जिस औरतें खराब या गलती का रास्ता लेना तो वो पूछ के तो नहीं लेगी। तो औरतें कहती हैं कि जी हम फलां पे वोट डालेंगे, मगर जी हमारे भाई ने ये कहा कि नहीं नहीं फलाने को वोट डालना, और अगर नहीं तो घर से जाने की परमिशन ही नहीं। आपका एक बहुत खूबसूरत ख्वाब है कशमाला कि वो खवातीन जो जाहिर है अब पढ़ने की उम्र से निकल चुकी है, आप उनके लिए कुछ करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि भाई अगर मतलब किसको मैं पैगाम दूं मुझे ये नहीं पता। मेरा मकसद कहने का ये है कि खुदारा मेरी अगर आवाज सुनता है कोई, तो मेरा नाम कशमाला मुंतजिर है, मैं नौशेरा कलां से हूँ, मुझ तक आए। मेरे इलाके में तकरीबन समझ लें मेरे अपने ब्लॉक में
4, 5, 10 हजार लेडीज हैं जो चाहती हैं कि हमारा दस्तकारी स्कूल हो, अच्छा हमारे लिए तालीम बालगा के लिए घरों में स्कूल हो, हम एक जगह पे बैठ के, बेशक दरी पे बैठे, हमें बेंच कुर्सियों की जरूरत नहीं है, हमें कोई पढ़ाने के लिए कोई टीचर किसी का तनख्वाह मुंतखब करें, हमें कोई पढ़ाए, हमें अली बे की समझ आए, हम अपने बच्चों को समझ सके कि मेरे बच्चे ने इंग्लिश की कॉपी खोली है, मैथ की कॉपी खोली है, या मेरे बच्चे ने उर्दू की कॉपी खोली है, मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, मतलब उसे समझ तो आए कि भाई मेरा बच्चा, मैंने अगर ट्यूशन हायर की हुई है, मेरा बच्चा वहाँ क्या पढ़ के है, उनको पता ही कोई नहीं है। अच्छा, मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन वही वाला आ जाता है कि मैं खुद जनरल सीट पे लड़ना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि भी मैंने इलाके में इतना काम किया है अपने हस्बैंड की सपोर्ट पर, तो मैं जनरल सीट पे लड़ू। जब मैं इलेक्शन दफ्तर में गई तो मुझे कहते जी बीबी की जनरल सीट पे सीट ही नहीं है, वो इस पे वोट लड़ ही नहीं सकती, बस उसकी एक नशिस्त खवातीन है। मेरे हस्बैंड को गलत गाइड किया गया और मेरा ये ख्वाब तोड़ दिया गया। यानी यकीनन मैंने इतना काम किया कि मैं इजीली जीत सकती थी, मगर ये कि मुझे गलत मिस्टेक करके, मिस गाइड करके मुझे ना आराम से एक साइड पे बिठा दिया गया। मगर मैं अगर जिंदा रही बशर्ते कि अल्लाह ताला के हुक्म से, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में मैं जनरल सीट पे पार्टिसिपेट करूंगी। हार जीत मुकद्दर की बात है, मगर औरतों को यह शौक है, मगर ये कि ये जो बड़े मजबूत तबका है जो पहले से जीतते आते हैं, ये लोग कहते हैं कि जी बस औरतें पार्टिसिपेट ना करें, क्यों? औरतों को चल वर्जी नहीं आता जी। ये एक बड़ी बात है कि औरतों को कुछ आता नहीं है और तरीका नहीं आता, तो आप जो है ऐसे करें। कशमाला, आपका बहुत शुक्रिया। कशमाला का किरदार इस माशरे की रिवायात को, ग्लास सीलिंग को तोड़ता हुआ एक किरदार है और हमें ऐसे किरदारों की जरूरत है। प्रोग्राम हमारा अभी जारी है, हमारे साथ रहिएगा। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको मिलवाया मुख्तलिफ खवातीन से जो उम्मीदवार हैं 19 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन में, और कुछ ऐसी खवातीन और ऐसे करैक्टर से भी मिलाया जो के इलेक्शन लड़ना चाहती थी, लेकिन माशरती मसाइल की वजह से वो हिस्सा ना बन सकी। अब हमारे साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साजिदा मलिक साहिबा मौजूद हैं। हरीपुर से इनका ताल्लुक है, बिला मुकाबला ये मुंतखब हो चुकी हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। हमने मुख्तलिफ खवातीन से बात की तो इलेक्शन का ये जो प्रोसेस था, कागजात नामजदगी के लेने से लेकर अभी जो इलेक्शन होने वाला है तब तक उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। आप एक अच्छा हुआ कि आप बिला मुकाबला भी आ गई, लेकिन आपने इस प्रोसेस से भी गुजरी हैं। क्या मुश्किलात हैं जो खवातीन को जिनका सामना करना पड़ता है, और आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? जी, जिस वक्त कागजात नामजदगी फॉर्म लेने के लिए जाना था तो उसके लिए बहुत ज्यादा शराइत रखी गई थी। उसमें ये था कि जो आपका घर है, मकान है, उसके फर्द मतलब डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगाने, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए और पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट्स भी चाहिए, और उसके साथ साथ कोरोना वैक्सीन का कार्ड भी मस्ट है। चले वो तो हम मान लेते हैं कि वो होना भी चाहिए कम से कम, क्योंकि अपने मुल्क को इस कोरोना जैसी लानत से, इस वबा से हमने बचाना है, तो उसके लिए सबको चाहिए कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। तो वो चले, कोई इशू नहीं था, लेकिन वो जो मकानात के डॉक्यूमेंट्स थे वो लेना उस वक्त खवातीन के लिए बहुत मसाइल था। फिर पुलिस स्टेशन जाना, फिर बैंक में इतनी रश लगी हुई थी, तो ये बहुत ज्यादा मसाइल है। मैं ये चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसे इस तरह की शराइत नहीं होनी चाहिए। ये तो मर्दों के लिए भी तो होंगी ना, तो फिर जब आप इक्वली बात करते हैं तो थोड़ा सा तो हिम्मत करनी पड़ेगी। मुश्किल कहाँ हुई? क्या घर का मर्द साथ नहीं दे रहा था, या थाने में जब आप गए वहाँ पे बिहेवियर अच्छा नहीं था? कहाँ मसला हुआ? नहीं, घर के कागजात कोई नहीं दे रहा था क्या? ये बात थी कि पटवारियों का बर वक्त मिलना, क्योंकि एकदम से इलेक्शन अनाउंसमेंट हुई है, फिर उन लोगों की भी वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा रहे हैं कि उनकी ड्यूटीज लग रही हैं, तो वो मसाइल भी थे लोगों के। लेकिन ये कि हमने उस वक्त ये आवाज उठाई थी, और फिर पहले 3 दिन जो है ये सारी शराइत पे जितने भी हुआ, मर्द खवातीन जो भी थे, सब लोगों ने ये शराइत पूरी की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जब हम लोगों ने इस इशू पे बात की है, तो फिर जो आखिरी 2 दिन थे उन्होंने कहा कि इन चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना फॉर्म सबमिट करवाएं।